property. First thing is it has atomic number 6. एटॉमिक नंबर बोहर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो के और एल शेल, के शेल में 2 एंड एल शेल में 4. तो इसमें कार्बन के सबसे पहले एटॉमिक नंबर दैट इज 6. In K shell it has 2 electron, L shell it has 4 electron. In order to complete its octet, according to Bohr, it should have 8 electron in the L shell, but so it could gain 4 electron. 4 electron ये gain करेगा और C4 negative anion बना देगा. बट इसके न्यूक्लियस में एक होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. तो जस्ट इमेजिन इनिशियली इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है. लेकिन जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. आई एम रिपीटिंग, जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने के उतने थे. When it gained 4 electron, it has now it has 10 electrons. It is difficult for 6 protons to hold 10 electrons. देख सकते हो आप न्यूक्लियस में 6 और 6 बराबर होने चाहिए, न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहिए, एटम स्टेबल होना चाहिए. But as it has gained 4 electrons, so now electrons are 10 and protons are 6. दूसरा केस क्या हो सकता है? It could lose 4 electron. ये गेन था. Now it could lose 4 electron. और अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो C4 नेगेटिव, C4 पॉजिटिव कैटायन, या तो ये कैटायन बना सकता है या एनायन. And when it has lost 4 electron, now look at the nucleus. इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए थे, 4 लूज कर दिए तो now it has 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने. Again it is unstable. It could lose 4 electron and form C4 positive cation, but large amount of energy is required to remove 4 electron. And now it has only 6 protons, which holding 2 electrons, which is also not possible. So ये दो possibilities थी. Please write down in your notebook. Carbon and its compounds chapter का नाम है ये, और आपने लिखना है इसके अंदर atomic number of carbon is 6, electronic configuration लिखो. Excuse me, ma'am. Yes बच्चे. Ma'am, sorry for interrupting, but I think carbon and compound is cut from board syllabus. हाँ, मुझे कई बच्चों के ना स्कूल में करवाया जा रहा है, तो जस्ट टेल मी कि अगर आपके सभी के स्कूल में हो रहा है, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला उनके स्कूल में है. मैम हमारे स्कूल में अगर ये कट गया है तो फिर नहीं होगा. नहीं Ma'am, नहीं, in my school, I don't think so. Ma'am will do it because it is cut from the CBSE syllabus. Ma'am, only a few parts of the chapter are cut, Yes. not the whole Yes. chapter. Yes, 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 only ma'am. few topics have been cut. Yes. Yes, So ma'am. हाँ, बस एंड में जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिमूव हुई हैं. ओके. सो एंड इनफैक्ट अंजलि, आपके स्कूल में करवाया गया है ये चैप्टर? Yes, ma'am. हाँ, मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया था. दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद दिस. डोंट वरी, आई विल कवर ओनली दोस टॉपिक्स व्हिच आर in your syllabus. Okay. Okay, ma'am. So बच्चे, अब आपने लिखा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी Kl 2 and 4. Next लिखो, it has 4 electrons in the outermost shell. It has 4 electrons in the outermost shell. हर्षित लिखो बेटे, आपने लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl, K के नीचे 2 और L के नीचे 4. As carbon has 4 electron in the outermost shell, so its octet can be completed in 2 ways.
Can you repeat? As it has 4 electron in the outermost shell, its octet can be completed in 2 ways. First लिखो, it could gain 4 electrons. It could gain 4 electrons and form C4 negative anion. And form C4 negative anion. But for a nucleus having 6 proton, it could gain 4 electron and form C4 negative anion. But for a nucleus having 6 proton, to hold 10 electrons. To hold 10 electrons. Second point लिखो, it could lose 4 electrons and form C4 positive cation. It could gain 4 electron, पहला point था. Next point है, it could lose 4 electron and form C4 positive cation. It could lose 4 electron and form C4 positive cation. But a large amount of energy is required to remove 4 electrons. Large amount of energy is required to remove 4 electrons. Large amount of energy is required to remove 4 electrons to hold 2 nucleus. To hold 2 electrons, which is not possible. बिल्कुल सिंपल सी चीज थी कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते. लुक ऑन द स्क्रीन, इट कुड ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन. बट लूज गेन करते इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे. लूज करते तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे. इन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन नंबर दे आर नॉट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन. तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग, इट शेयर्स. तो इन ऑर्डर टू, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम,
In order to overcome this problem, carbon shares its valence electron with other carbon. In order to overcome this problem, carbon shares its Ma'am, valence. can you please repeat? Yes. In order to overcome this problem, carbon shares its valence electron with other carbon. In order to overcome this problem, carbon shares its valence electron with other atoms of carbon. And this mutual sharing is known as, this mutual sharing of electron is known as covalent bonding. तो ये काम करता है, ना ये एनायन बनाता है ना केटायन बनाता है. It shows mutual sharing. And this mutual sharing is known as covalent bonding. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटे. Ma'am, what is the difference between covalent bond and ionic bond? I'll explain बेटे. बेटे देखो, इसमें अभी कोवलेंट बॉन्ड में अभी मैंने आपको बताया कि it will share the electrons. For example, carbon has 4 electrons in the outermost shell, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 2 and 4. तो outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो I have tried to make the electrons in the form of a dot. Lewis ने dot structure दिया था to represent these electrons. These dots are representing electrons. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 डॉट्स बन गए. अब इसने या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता था या गेन कर सकता था, बट इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग इट शेयर्स. दिस शेयरिंग कैन बी डन विद अदर एटम्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन शेयर विद हाइड्रोजन. As hydrogen has 1 electron in the outermost shell, please look on the screen carefully. थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, तभी समझ आएगा जब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. Trying to make the diagram once again. Carbon in the middle. Carbon के बारे में याद रखना, it has 4 electrons in the outermost shell. So 1, 2, 3, 4. Electrons can be represented in the form of a dot or a cross. तो 4 हाइड्रोजन्स साइड पे लगे. हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इसने कार्बन से शेयर किया. Now all the hydrogens, they have 2 electrons in the outermost shell. Okay. अच्छा, अगर आपने इसमें दिशा, अब ठीक है बेटे? वॉइस आ रही है दिशा? मैम क्रैक हो रही है वॉइस. अब ठीक है दिशा? दिशा, मेरी वॉइस क्लियर है बेटे? मैम क्रैकिंग है. क्रैकिंग है? और बाकियों के लिए व्हाट अबाउट Ma'am, अदर्स? it's fine. Yes. दिशा, आपके वहाँ नेटवर्क इशू है रजे? जस्ट चेक. मैम डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. मे बी एंड दैट इज द रीजन. ठीक है, एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है बेटे. अच्छा, इसमें देखो, कार्बन के पास क्या था, हाइड्रोजन ने तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए. और कार्बन के पास क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? जस्ट चेक. हर कार्बन के पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसमें ये क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8. तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. अब इनके जो बॉन्डिंग है वो क्लियर हो गई, मतलब वो सारा इसके जो वो है बॉन्ड्स बिल्कुल सेटल हो गए, क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज व्हाट इज म्यूचुअल शेयरिंग.
दिस इज व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्ड में जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सोडियम के पास, बहुत ध्यान से देखो, सोडियम के पास, इसके पास के एल और एम शेल में, ये के शेल है 2 है, एल शेल में 8 है, एम शेल में 1 है. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लूज कर देगा और फॉर्म करेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज केटायन 2,8. इसी तरीके से क्लोरीन है. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 2,8,7. आप लोग देख रहे हो कि इसको 8 बनाने के लिए के एल एम शेल में 8 बनाने के लिए इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम के पास था. तो क्लोरीन विल एक्सेप्ट दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म करेगा 2,8,8. This type of bond is known as ionic bond, where one loses 1 electron and the another gains that electron. जो lose करता है वो positively charged ion, जो gain करता है वो negatively charged ion. तो एक cation है, एक anion. As this bond is formed between cation and anion, this type of bond is formed known as ionic bond. What is ionic bond? Bond formed between two ions, cation and anion. What is covalent bond? Bond formed between by mutual sharing of electrons. Okay, so covalent bonding आपने लिखा. Now write down heading some important some examples for covalent bonding. क्या ionic और covalent clear हुआ सभी को? Ionic bond is a bond formed between two ions, cation and anion, and covalent bond is formed between by sharing of electrons. The first is formation of hydrogen. Write down heading formation of hydrogen molecule. Formation of hydrogen molecule. अब इसके पास अगर आपको पता हो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पता है किसी को? Ma'am, 1. 1. यस यस 1. यस. In the K shell it has 1. Sorry. Ma'am, excuse me. Yes. Ma'am, what is the heading? Heading is example of covalent bonding. K shell में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. And then two atoms they combine. देखो अब शेयरिंग कैसे करेंगे. एक के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. They will share mutually. इस हाइड्रोजन के पास कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके सर्कल में, दूसरे हाइड्रोजन के पास क्लियर हो गया, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिंगल बॉन्ड, 1 लाइन. दिस इज, लिखो, ये बनाओ ये डायग्राम, हाइड्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन बना के शेयर करवाओ, सिंगल बॉन्ड. कितनों को समझ आ गया यहाँ तक? रेज योर हैंड फास्ट. जितने स्टूडेंट्स को क्लियर है ये पार्ट, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट. ओके, मैम एक बार ये लास्ट पार्ट रिपीट कर दो. ओके ओके ना. अच्छा, इसमें देखो हाइड्रोजन के पास, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, बट इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, 0 रह जाएगा. गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विच इज इम्बैलेंस. तो ये क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, इसने शेयर किया. ओके, गॉट इट एवरीवन? तो इसने शेयर करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्डिंग. Nandini, I'm just giving you another example, then it will be more clear to you. Second point is chlorine. लिखो, formation of chlorine molecule. Just look here on the screen, Nandini. आपको बताया था 2,8,7. This is the electronic configuration of chlorine. Please write down everyone. Chlorine की configuration, because it has 7 electrons in the outermost shell. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नंदिनी इसको 8 बनाने के लिए? M में 1. 1. So it will share the electron with another chlorine atom. So look here, before combination and after combination. जैसे क्लोरीन का अगर आप देखो, रिप्रेजेंट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स, representing them with the help of a cross. It can be in the form of a dot. डॉट भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, क्रॉस भी. ओके, इसी तरह क्लोरीन. दिशा समझ आ रहा है बेटे? दिशा, मेरी वॉइस क्लियर है आपको?
यस मैम। ओके मैम हाँ आज आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बेटे मैंने कर बोल दिया रिकॉर्डिंग के लिए। यस मैम। तो इसमें देखो क्लोरीन के पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में ये अब इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. नाउ लेट्स काउंट इफ दिस क्लोरीन हैज ऑल द 8 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल. और इसी तरीके से आपने इसका सर्कल बनाना है. And it now again it has 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8. और इन जब दो क्रॉसेस को ज्वाइन किया गया, अगेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड. क्लियर नंदिनी? Yes, ma'am. Okay, please draw this diagram then fast. I'm giving you many examples today. I hope you all are ready for the test also. Yes, ma'am. Yes. तो बेटे नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम्स का टेस्ट होगा. हर क्लास में 15 minutes टेस्ट होगा, because I can see many students are not studying at all. It's for the whole class that I'll be taking test in every class from now onwards. सब क्लास में आपका टेस्ट होगा. And I'll share the video. किस बच्चे ने अभी ज्वाइन इन किया है? Yes. I think Bhavya, is that you बेटे? Bhavya, I think there was your exam है ना, ASL today. Bhavya, I'm repeating it for you बेटे. Please look on the screen fast. Bhavya, am I audible to you? So is my voice clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, got it. Bhavya, please look on the screen बेटे. So we have started with this chapter carbon and its compounds. Carbon के हमने atomic number पढ़ा. बाकी जिसको नहीं भी समझ आया, please वो भी screen पे देखो. Bhavya, please unmute yourself and just give me an answer whether you are able to hear me or not. Bhavya. Okay, I guess there is some issue. Okay, so we have started with this chapter carbon and its compounds. तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या था? 6. और इसके पास शेल में कितना आता है? K में आएंगे 2, L में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन ईदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन. जब ये गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, it could gain 4 electron and form C4 negative ion. C4 negative ion को बोलते हैं anion. जब गेन किए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से 6 + 4, यू कैन लुक हियर, 6 + 4 कितने बन गए? 10. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन 6 प्रोटॉन्स, which is not possible. Reason, it should have equal number of protons and electrons. और अगर ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 2. आफ्टर लूजिंग दिस 6 में से 4 निकाले, 2 रह गए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स रह गए 6. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू have 2 electrons and 6 protons. It should be equal, the number should be equal, क्योंकि ये दोनों में differences आ रहा था. इसीलिए instead of losing or gaining, it shares, and this mutual sharing is known as covalent bonding. For example, carbon has 4 electron in the outermost shell. एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने और फॉर्म किया कोवलेंट बॉन्डिंग. इसमें किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed between two ions. सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज दैट इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम पॉजिटिव आयन कैटायन बनाएगा. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया सोडियम ने और फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन. और दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस. एक होता है कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय between two ions.
तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया वो था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में शेयर किया और फॉर्म कर दिया H2 मॉलिक्यूल। उसी तरीके से क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 बनाने के लिए ये हमने डायग्राम बनाया। मैंने इसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किए, क्रॉस लगाए आसपास 7 रेड क्रॉस है, दूसरे में ब्लू 7 क्रॉस है। आपस में ब्लू और रेड ने शेयर किया, म्यूचुअल शेयर। तो ब्लैक वाले सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ब्लैक सर्कल आ रहा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ग्रीन वाला सर्कल है इसमें इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दे हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट। इसके पास कंप्लीट है और इसके पास कंप्लीट है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब फिर से आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा आप लोगों का इसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के पहले लिखने से पहले आप इसका पहले एटॉमिक नंबर लिखोगे। अगर मैंने आपसे पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो आई नीड द कंप्लीट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज Kl। 8 बनाने के लिए क्या होगा? 2 और 6 बन गया 8, 2 and 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और अब आपको ऑक्सीजन बनाने हैं विद 6 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सिक्स को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। 2. Ma'am, 2। तो दिस इज द वे आई एम ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन्स। पेयर में ही बनाओगे आप। अब लेट्स सी, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने शेयर कर लिए। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर दूसरे वाले के साथ हम शेयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया। दिस इज डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। कितनों को समझ आ चुका है? रेज योर हैंड। हाउ टू फॉर्म अ बॉन्ड कितनों को क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। भव्य, आई थिंक आपको भी क्लियर हो चुका है। इफ यस, देन जस्ट शेयर अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप। Ma'am, can you repeat? This one? Okay, I'll repeat. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी तरीके से बना सकते हो। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, आसपास आपने बस इस साइड पे 2 होने चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 बनाने के लिए इसको ये इसके साथ शेयर करना पड़ा। फिर इसके बाद दूसरी तरफ भी इसने शेयर किया, एंड दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? यस कुमार? ma'am, excuse me. यस बेटे गुरविंदर। Ma'am, can you differentiate the single bond and double bond? बेटे सिंगल बॉन्ड हैज सिंगल लाइन इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में लाइन लगा देंगे। मैम This is अगर single. मतलब 3 होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। triple. अभी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। नाउ राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर formation of nitrogen molecule. Write down the next part. Nitrogen molecule, formation of nitrogen molecule. This is not given in NCERT, but आप कुछ parts दिए हुए। This is given. Yes, this part is given in NCERT. तो आपका नेक्स्ट क्लास में इसी का टेस्ट होगा, तो बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखेंगे? कैन एनीवन टेल मी? Ma'am, 2 Ma'am, 5. 2 plus 5. 2, हाँ, 5. 2, 5. 2,5, yes.
And now I'm going to write it in a cross form. तो अब ये देखने का है, देखो इसे how to represent, because 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 बनाने के लिए 3 चाहिए. तो इसमें इसने 3 एक्सेप्ट किए दूसरे नाइट्रोजन से, और इस नाइट्रोजन ने भी 3 इधर से शेयर किए. नाउ दे हैव 3 bonds, that is triple bond between 2 nitrogen atoms. Please draw this. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, maximum how many bonds can be made? मुझे इससे ज़्यादा बनाने मुश्किल होते हैं. वैसे तो 3 बॉन्ड हैं between 2 same atoms. 3 से ज़्यादा नहीं. Between different atoms, yes, can be 5, can be 6, so on. But it depends on the size. क्योंकि देखो अगर आप इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे ज़्यादा, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स. आप देख रहे हो जैसे 2 2 2 अब हर जगह, सॉरी नॉट 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए तो 8 तो मतलब फुल है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है उसको. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड. Okay, ma'am. Should I proceed? Yes, I'm moving to the next part. Now, formation of methane. Write down the next part, formation of methane. क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पार्ट आना है, हमारा नेक्स्ट क्लास में मे बी ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए. सिर्फ 3 टॉपिक्स रह गए, छोटे छोटे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको आ नहीं रहा इस चैप्टर में. फिर विल स्टार्ट विद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. केमिस्ट्री बहुत बच्चों को टफ लगती है, खुद करोगे नहीं आएगी. प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस. इवन इफ you have some problem, just let me know in advance, but do not miss your class. तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कैन एनीवन टेल मी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन? Ma'am, 6. 4 आउटमोस्ट शेल. Oh, sorry, ma'am, 4. हाँ, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4. कार्बन दिमाग में बिठा लो, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. इट हैज वैलेंसी ऑफ 4. इट इज टेट्रावेलेंट. तो कार्बन के पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन ज्वाइन विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. ये हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था. तो चारों तरफ आप हाइड्रोजन लगाओगे. पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को. हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब हम बैलेंस करेंगे कार्बन को. जितने इलेक्ट्रॉन है सर्कल में आने चाहिए. इसको लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. CH4. दिस इज द स्ट्रक्चर. और भी डायग्राम्स हैं, we'll do it in the next class because the time is over. Let us start with the test part. बना लिया बच्चों सभी ने? Yes, Okay, हाँ बोलो. yes. Ma'am, if bond is one with single bond, then double bond. Ma'am, if there are 3 lines in between, then it's triple bond. हाँ, 3 लाइंस हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटे. And बेटे, ma'am, 4 होंगे, टेट्रावेलेंट बॉन्ड होगा. okay, ma'am. Okay, Bachche, please open your notebook and start with the test. You have only 15 minutes. By 4, I want your answers through WhatsApp. जिस बच्चे का नहीं आएगा by 4 PM, I'll mark his or her name as absent. Make it a point कि आप सभी जितने भी बच्चे present हो, सबके answers मेरे पास 4 बजे पहुंच जाने चाहिए. Please start with the questions now. Look at your screen and start with the answers fast. Ma'am, do we have to write questions? No, you don't have time for that, but do it fast. Switch on your cameras, everyone, and just show me your notebooks. Show me your notebook or page, fast. Only Ma'am, I two am students. doing on whiteboard. Yeah. Okay. Share your screenshot then.
Okay, then start with your answers, Bete. Please do not waste your time. You have only 10 minutes. Only, I guess, 12 minutes to complete the answers fast. Is this visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Ma'am, in the second question, we have to write just the equation. Yes, that's it, Bete. Do it fast, Bete. You have very less time.
Ma'am. Ma'am. Yes, Kumar. Ma'am, in question number 5, how many examples do we have to give? Two. I've written it, bete.